چلیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک سلائیڈ شو ہو رہی ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے مترادف الفاظ. تو اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں. ایسے الفاظ جو پڑھنے اور لکھنے میں تو الگ ہوں مگر ان کے معنی ایک ہی ہوں, ہم معنی یا مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. جیسے کہ ان لفظوں سے ہی ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم معنی الفاظ جو ہیں وہی ہمارے مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. مطلب یہ کہ ایسے الفاظ جو بولنے میں اور لکھنے میں بالکل الگ ہو, ان کا املا الگ الگ ہو مگر ان کے مطلب ایک جیسے ہوں, تو ان کو ہم معنی بھی کہا ہے اور مترادف الفاظ بھی کہا جا رہا ہے. آئیے ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے پہلے چیپٹر میں لفظ کی اقسام پڑھی اور اس سے پہلے ہم نے لفظ کے بارے میں سیکھا کہ ایسے الفاظ جو ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں ان کو لفظ کہا جاتا ہے. ان کی ہم نے 2 اقسام پڑھی, نمبر 1 کلمہ اور نمبر 2 محمل. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے بہت اچھے اچھے معنی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بس لفظوں کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے آؤ بیٹھو کچھ دیر گپ شپ کریں, فقیر کو بچہ کچھ کھانا دے دو, تم آج کل بڑے ٹال مٹول سے کام لے رہے ہو. تو اس طرح کے لفظ جو معنی نہیں رکھتے وہ بھی ہمارے اردو بول چال میں شامل ہیں. تو الفاظ کے ساتھ ہم نے کلمہ کی 3 قسموں کے بارے میں سیکھا. اسم, فعل, حرف. ایسے الفاظ جو کسی شخصی جگہ کا نام ہوتے ہیں وہ اسم کہلاتے ہیں, اور ایسے الفاظ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کریں ان کو فعل کہا جاتا ہے. اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ نہ اسم ہو اور نہ فعل, مثلا نے سے پر کو تک, یہ ان الفاظ کو ہم حرف کے نام سے پہچانتے ہیں. آج آپ کے ساتھ جو اسم ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں مترادف الفاظ. آپ کے سامنے یہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے جہاں پر پہلا لفظ لکھا ہوا ہے آب اور دوسرا ہے پانی. ایسے الفاظ جن کا مطلب ایک ہو. آپ نے اردو الف میں بھی بہت سارے یہ کوشچن کیے ہوں گے جن کے آپ کو مطلب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو عموماً یہ ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتے ہیں الفاظ, لیکن کچھ لفظوں کے ایک سے زیادہ بھی مطلب ہوتے ہیں. تو جیسے آپ کے سامنے آب ہے, اس کا لکھنے کا انداز کچھ ہو رہا ہے, اس کو ہم نے بولنا بھی کچھ ہو رہا ہے. اس کی جب ہم بولیں گے تو آواز کچھ اور ہی نکلے گی, جیسے کہ الف دا اور بے ساکن آب, اور اس کے علاوہ پہلی پا نون چھوٹے, یہ نہیں پانی. یہ پانی کا لفظ اور آپ کا لفظ ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ایک ہی اسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یعنی وہ چیز جو بے رنگ ہے اور بے ذائقہ ہے, اور وہ سارے یعنی اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن ہے. یعنی کہ پانی, ہم پانی کو پانی کے طور پر تو پہچانتے ہیں, لیکن اس کا ایک اور لفظ ہے وہ ہے آب. تو آپ نے دیکھا کہ ایسے الفاظ جو پڑھنے لکھنے میں تو الگ ہیں مگر ان کا مطلب جو ہے وہ ایک ہے, تو ان کو ہم کیا کہیں گے, مترادف الفاظ. اگلی مثال دیکھتے ہیں, حیا, شرم. دونوں لکھنے اور پڑھنے میں یعنی کہ اسپیلنگ جو ہے وہ ان کے الگ ہے, ان کا ملاپ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, الگ الگ ہے. تو ان کو آپ نے بالکل اسی طرح یاد کرنا ہے. حیا کا مطلب کیا ہے, شرم, تو یہ اس کا مترادف لفظ ہے. اسی طرح اگلا لفظ لکھا ہوا ہے ہوس کا. ہوس کا مطلب ہے لالچ. ہے, واو, واو کے اوپر تشدید ہے اور پھر سین ہے, تو اس کو ہم بولیں گے ہوس. کوئی بچہ اس کو ہوش نہ پڑے, تو مطلب ہو گیا اس کا لالچ. اس کا ایک اور مطلب, اس کا ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے جس کو ہرس کہا جاتا ہے. ہرس, ہوس, لالچ تینوں ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. اگلی مثال ہے فلک, آسمان. فلک لفظ ہے سٹک والے کاف سے, بہت سارے بچے اس کو غلطی سے قلم والے کاف سے لکھتے ہیں, تو بیٹا اس کی غلطی آپ نے نہیں کرنی لکھنے کی. ان الفاظ کو نہ صرف آپ نے بول کر سیکھنا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے. یہ فلک ہو گیا, اور اس کے آگے اس کا جو لکھا ہوا ہے مترادف لفظ آسمان. تو آپ نے اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے, فلک, آسمان بول کر بھی, اور پھر اس کے بعد لکھنے کی پریکٹس کیجیے گا کہ آپ کو یاد ہو گیا کہ نہیں. اس کو ایک ایک لفظ کو آپ نے تقریباً 5 بار پڑھیں گے تو دوسرا لفظ آپ کو یاد ہو جائے گا. اگلی ہی مثال ہے بد, یعنی بے اور دال کا لفظ لکھا ہوا ہے بد, اور اس کا مترادف لفظ ہے برا. آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا بدی کا,
नेकी और बदी ये एक दूसरे के उलट होते हैं। तो बदी कहते हैं बुराई को, और बदी करने वाला कहलाएगा बद। ऐसा शख्स जो बदी कर रहा उसको कहते हैं बद। बद यानी बुरा। दुश्वार, मुश्किल, दोनों लिखने में टोटली डिफरेंट है लेकिन मतलब इनका एक ही है, यानी कि कोई ऐसा काम जो करने में मुश्किल, जिसके करने में मुश्किल पेश आए वो दुश्वार कहलाता है। ये रास्ता दुश्वार है यानी ये रास्ता मुश्किल है। या कुछ सवालात जो हैं वो दुश्वार होते हैं लिखने में और कुछ सवाल जो हैं वो आसान होते हैं। तो दुश्वार का मुतरादिफ लफ्ज हो गया मुश्किल। इसी तरह अगला लफ्ज है बरस। इसको बरस नहीं पढ़ना, बरस पढ़ना, बे रे सीन, बरस साल। साल मतलब ईयर, जैसे 2020 फिर 2021, पहला साल दूसरा साल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी उम्र कितने बरस है तो आप उसको समझ आना चाहिए कि आपकी उम्र के बारे में सालों का हिसाब लगाया जा रहा है कि कितने साल किया है, आप कितने साल के हो गए हैं। तो बरस साल। शय चीज, किसी चीज को हम शय भी कहते हैं, इसका एक और नाम है शय। शय शीन के ऊपर जबर लगाने से हम इस लफ्ज को पढ़ेंगे, शीन जबर ये शय। अगला लफ्ज है खुशी और इसका मुतरादिफ है मुसरत। फिर अगला लफ्ज है बहिश्त यानी जन्नत। बहिश्त के वैसे बहुत सारे नाम हैं, तो हे के नीचे जेर आएगा तो बहिश्त बनेगा। अलम झंडा, इसको कोई बच्चा इल्म ना पढ़े, दोनों हरूफ के ऊपर जबरे हैं, आइन के ऊपर भी और लाम के ऊपर भी, तो ये बनेगा हमारा अलम यानी झंडा। जैसे पाकिस्तान का झंडा है जिसके दो रंग हैं, सब्ज और सफेद, तो ये हमारा अलम है यानी ये हमारा झंडा है जिस पर चांद तारा बना हुआ है। तो अलम का मुतरादिफ लफ्ज है झंडा। अगला लफ्ज है ताज्जुब का। ताजुब लिखा हुआ है ते आइन जीम और बे से, और जीम के ऊपर तशदीद है इसलिए ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो इसको सारे बच्चे पढ़े ताजुब। जब मैं कोई लफ्ज पढ़ूं तो साथ साथ बोलने की प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस भी किया करें। ताजुब यानी हैरत, इस बात पर मुझे बहुत ताजुब यानी हैरत है, ये अक्सर हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। अगला लफ्ज है हमारा पतला यानी दुबला। कोई चीज, कोई सफा मोटा होता है, कोई पतला होता है, पतला कपड़ा होता है जैसे पतला सा कपड़ा दुबला सा, और कुछ दरख्त होते हैं पतले दुबले, कुछ जानवर होते हैं पतले दुबले, तो कुछ इंसान भी पतले और दुबले होते हैं। तो इन चीजों के बारे में हमने इनकी जो वो एक हालत है वो बताई जा रही है, पतला और दुबला। कोई गाय है दुबली है और कोई गाय है जो मोटी है, और कोई बकरा है जो पतला दुबला सा है सूखा सा है, और कोई बकरे ऐसे भी होते हैं जो तरोताजा और मोटे होते हैं। तो मोटे और तरोताजा का जो मतजाद लफ्ज है वो है पतला, यानी उसका उलट जो है वो पतला और दुबला। अगला लफ्ज है खूब यानी अच्छा। किसी चीज की हम तारीफ करते हैं तो कहते हैं क्या खूब नात पड़ी है, या क्या खूब शेर है, या क्या खूब बात कही है, क्या खूब मंजर है। इसी इसी लफ्ज से हमें खूबसूरत लफ्ज निकला है, यानी ऐसा ऐसी सूरत जो खूब हो, अच्छी हो। तो खूबसूरत का लफ्ज इसी खूब लफ्ज से निकला है। इसको सब बच्चे खेक पर पेश लगाकर पढ़ें, खूब अच्छा। अगला लफ्ज है तपिश यानी हरारत। इसको हम गर्मी के नाम से भी देखते हैं कि आज बहुत गर्मी है, यानी आज बहुत तपिश और हरारत है। सूरज की तपिश से सारी जमीन तपने लग गई और सूरज की हरारत से हर चीज पिघल गई। तो ये इस तरह की मिसालें हैं कि जो हम इन नाम लफ्जों को हम बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। तपिश का मुतरादिफ लफ्ज हरारत। उजाला रोशनी। उजाला की एक खास बात है कि इसके अंदर 3 अलिफ आते हैं। एक लफ्ज होता है उजला, उसके अंदर 2 अलिफ आएंगे, लेकिन उजाले में आपने देखना है कि इसके अंदर 3 अलिफ आ रहे हैं। एक अलिफ आएगा शुरू में, फिर जीम अलिफ जा और फिर लाम अलिफ ला। तो ये जिसके अंदर 3 अलिफ आएंगे इसका मतलब होगा रोशनी। जिद्दोजहद यानी कोशिश। जिद्दोजहद कोशिश। सर्द ठंडा। सर्दी और ठंड ये ऐसे लफ्ज हैं कि जो हम अक्सर बोलते हैं कि आज बहुत सर्दी है, आज बहुत ठंड है।
तो इन्हीं लफ्ज़ों से मिलकर ये सर्द का लफ्ज़ और ठंडा का लफ्ज़ है। सर्द यानी पानी बहुत सर्द है, या मौसम बहुत सर्द है, यानी मौसम बहुत ठंडा है। तो सर्द और ठंडा में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सर्द का मतलब क्या है? ठंडा, और सर्दी का मतलब है ठंड। अलिफ का एक फ़र्क है ठंड के साथ। तो यहाँ पर सर्द यानी ये गायब है, तो आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पर कोई गलती हो गई है। इसको बिल्कुल ऐसे पढ़ें, सीन रे दाल सर्द यानी ठंडा। अहद, आइन है दाल अहद यानी वादा, अहद की पाबंदी करना यानी वादा पूरा करना। वादा पूरा करना भी अखलाकी खूबियों में शामिल है। अगला लफ्ज़ है रिवाज यानी रस्म। कोई ऐसे काम होते हैं जो हम रस्मन करते हैं, और कुछ काम हैं जो कि हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तो वो काम जो कि रस्मन किए जाते हैं उनको कहते हैं कि किसी इलाके का एक ख़ास रिवाज होता है। पंजाब में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रस्मन किए जाते हैं। और यहाँ पर अगला लफ्ज़ है दरख्त यानी शजर। पुख्ता पक्का, फरेब धोखा, खौफ डर, तर गीला। तर के बारे में एक चीज़ आप देख लें कि कोई चीज़ें पत्ते जो हैं वो फूल जो हैं वो नम होते, घास पे नम हो जाती है, यानी कि रात भर उस वहाँ पर शबनम पड़ती है, पानी ओस गिरती है, तो वो जो ज़मीन है घास वाली वो नम हो जाती है, उसको कहते हैं तर हो जाना। ज़मीन को आप पाशी के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं ज़मीन को तर कर लें। या कोई शख्स बहुत ज़्यादा गर्मी में चल रहा हो तो उसको कहते हैं आप अपना चेहरा पानी से तर कर लें। तो मतलब ये कि गीला कर लें, किसी चीज़ को पानी से गीला करना उसको कहते हैं तर करना, पानी से गीला करना। आप दुकानों पर देखा होगा कि अक्सर लोग सब्जियों पर या फलों पर पानी छिड़क रहे होते हैं, वो उनको तर कर रहे होते हैं। तेरे तर गीला। आफत मुसीबत। समर फल, सीम मीम रे समर फल। शीन नहीं है, ये से है, अरे बेते टे से वाला से। तवक्को उम्मीद। आफताब सूरज। आफताब के और बहुत से नाम हैं, शम्स खुर्शीद, आफताब सूरज। यहाँ पर सिर्फ 2 दर्जे तो आपने 2 ही याद करने। नज़दीक करीब। नज़दीक करीब पर सब बच्चे टिक लगा लें, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस के मुताबिक इतनी ही लर्निंग करनी है आपने। इससे ज़्यादा हम अभी बाद में करेंगे, सिलेबस में शामिल नहीं है। यानी चिराग दिया आपने नहीं याद करना अभी फिल वक्त। जो बच्चे लर्निंग में बहुत अच्छे हैं उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, वो चाहे पूरा चैप्टर याद कर लें। लेकिन जो बच्चे बहुत स्लो होते हैं तो पेपर्स के लिए उनको इतना ही दिया गया है। आप ऊपर से लाइनें काउंट कर लें। आप पहली लाइन है फलक दूसरी, बर्स तीसरी, पहिस 4, पतला 5, उजाला 6, अहद 7, पुख्ता 8, तार 9 और तवक्को 10। 10 लाइनें हैं जो आपने राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं तक 10 लाइनें याद करनी है। ये आपके सिलेबस में इस दफ़ा शामिल है। सब बच्चों ने इन्हीं अल्फाज को लिखकर मुझे नोट शीट पर सबमिट करवाना है काम में। ये होमवर्क में भी शामिल है, ये सिलेबस में भी शामिल है। तमाम अल्फाज को आपने बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ लिखना है बल्कि याद करना है। तो अभी आज इस लेक्चर में आपका जो है मुतअद्दिद अल्फाज का वो इतना ही पोर्शन शामिल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वाही जमा के साथ डिटेल के साथ पढ़ाऊँगी।